Yes, sir. Yes, Hmm. sir. Okay, so नहीं अभी क्लास है बाद में. Okay, so now today we'll just start with this biasing techniques and their stability. So the thing is that we already know, like yesterday we discussed in briefly that why biasing is required. And there are different methods that we can apply biasing to the transistor circuit. But now the thing is that once we have biased this transistor circuit, any amplified circuit, so we need to make it sure that it is a stable circuit. That so what do you mean by the stability? Okay, so we know that biasing means that making a quiescent point of this particular transistor at some specific point. So we need to decide that what is the quiescent point or a Q point for this operation of a transistor circuit. So depending upon our application, so several applications we discussed about, like motor control or lighting control or audio control, music control, any number of applications. So based on the application, we can decide upon the Q point or the operating point of the circuit. So once that is decided, we have to make it sure that this circuit is stable. So now why we want to make it a stable circuit? So now this uh, Q point, this operating point of a transistor circuit. So what are the problems faced by this circuit? One is that this amplifier or this any transistor circuit can have a distorted signal at the output. So if we have biased a circuit by using any of these four methods, we have to make sure that this circuit must not have a distorted output signal. For example, we have a microphone at the input signal, and we have a transistor circuit, a kind of an amplifier, a common emitter amplifier. And then at the output, we have connected a speaker. So now at the output, we must not have a distorted signal at the speaker. So if we have a clean input signal like a sine wave at the microphone, we must get a clean sine wave at the output, which is a speaker. So if it is not clean, it is called a distorted signal. So what do you mean by distorted signal? Distorted signal means maybe at the output we have a different wave shape. It's not pure sinusoidal, but it can be a kind of a shifted sinusoidal, means having a phase difference compared to the required output. Or it can have some spikes inside the sinusoidal signal, small glitches, or some addition of a noise. So all these additions like noise, glitches, and all this, they make this signal distorted. So we do not want a distorted signal at the output. So for that, the biasing circuit have to make it stabilized. How to do it, we'll see in the next slide. So now the thing is, what are the various parameters actually make this happen? Means actually make this Q point shifting from our required point or required location. So let's say this is the required location or a desired location, and due to some variations in the environment, we have this desired location over here shifted up or down, so giving us the distorted signal at the output. So what are these main reasons? One is that maybe some transistor shift is there. So if transistor shift is there, then we can have a different value of beta.
So if we have a different value of beta for the same circuit, we can have a different value of the amplification. So if amplification is changed for this same circuit, it means then the output wave shape can change. It can also, how beta is changed? Beta can be changed by various reasons. One is a shift in environment, like shift in temperature or shift in environmental other physical quantities like moisture and all this. And also like more noise coming inside of the circuit. Another reason is the leakage current. So this leakage current can also change due to the thermal variation, means due to temperature variations in the environment, and the base emitter voltage. So let's say if one transistor is faulty, so we solder it, or sorry, unsolder it, take it out and bring a new transistor, and then we can solder it again. Now we have a circuit running again. But now just by changing the same type of a transistor, but a new transistor, and we know that no two transistors are exactly same. This we already know from semiconductor physics. So due to the change of this transistor, the same type of transistor, but still some variation will be there. Due to that, a new type of VBE will be there. So let's say the previous transistor had a VBE of 0.7 for silicon transistor. And if we change it with the new one, because the previous one was faulty, and we changed it with the new one, so maybe now we have a 0.71, 0.69, or 0.68. So this small variation will make a small distortion at the output. So all these variables are actually, you can say, are varied due to the external environmental variations, basically the temperature. So mainly the temperature is actually the main reason why these variations actually happen in the existing circuit. So we need to make some, you can say, mechanism which can help us in maintaining these three values so that the Q point is stabilized. It does not change that much. Okay, so before going into that stability, just refresh the biasing techniques. So this is the fixed bias methodology. So this fixed bias methodology, this is a transistor, a kind of an amplifier. So this common emitter transistor is actually used in this amplifier circuit. So this is the input, this is the output, V out, and this is the supply voltage, VCC. So supply voltage is required in order to run the transistor, and this is the ground. So emitter is connected to the ground, collector is connected to the supply positive voltage, and so we have a supply over here. So normally 5-volt power supply is used in lab equipments. So let's say VCC is 5 volts. So this is the output. At the collector, we get the output. So we can connect a speaker here at the collector terminal, and we can connect the microphone at the base terminal. So this type of circuit is a fixed bias circuit. So we take two loops. One is the output loop, which is collector emitter. Collector emitter is the output circuit, and base emitter is the input circuit, because the input voltage supply is connected across the base and the emitter. So this is the input circuit, base emitter, and this is the output circuit, collector emitter. So if we just use a KVL for input circuit, which is a base emitter loop, we can get this equation. And similarly, using KVL at the output circuit,
which is a collector emitter loop, we get this equation. So from input circuit, we have a base current, equation of a base current in terms of the voltages and resistance, which is this base resistance over here. And the collector current, which is the output current connected to the speaker, let's say, is this is the equation for that. So relation between the current and the voltage and the output resistance, which is RC over here. So these two equations, and third equation, we already know the relation between collector means, which is the output current, IC is the output current, and IB is the input current. Beta times of input current. So beta is the amplification factor. So no two transistor will have the same beta. So some variation will be there. And if temperature keeps on changing, then more variation in beta will happen. So which will make unstable circuit. So we want to go for the stability. Okay, now fixed bias, the same circuit, but now we have a emitter resistance. That is another technique of biasing circuit. So we have a additional emitter resistance over here. The same circuit, input and output, and these two resistances, RB and RC. Now we have RE also. So we can just use the same KVL for input circuit, which is base emitter loop. Now this new this term comes in, which is IE into RE, means the emitter current and emitter resistance. And then the KVL at the output, which is collector emitter loop. So now we again have two equations. So now this relation we have for the current. The emitter current, which is beta IB, which is IC plus IB. We know that IC plus IB is the emitter current. Okay. Now voltage divider biasing, which is mostly used in most of the circuits. So this is a voltage divider biasing circuit. Third type of biasing circuit. All these biasing circuits have their advantages and disadvantages. But the main idea is to bias a circuit, to bias the transistor. To bias the transistor means to decide the Q point or the operating point using different biasing techniques. Okay. So in this biasing technique, we have these two resistances R1 and R2 working as a voltage divider. R1 and R2 are just connected in such a manner that they are acting as a voltage divider. So that's why it is called voltage divider biasing. So this is the collector resistance and this is the emitter resistance, as we saw in the previous slide. Again, the same thing, applying KVL. So in this case, it's easier to first convert this biasing, this voltage divider circuit into a Thevenin's equivalent circuit. And in Thevenin's equivalent circuit, we can easily now find out. So this is the input circuit, which is base emitter loop. And this is the output circuit, which is the collector emitter loop. So we can apply KVL very easily to these two input and output circuits. So that's why Thevenin's equivalent circuit is made out of the voltage divider circuit, just to make the analysis simpler. That's the only reason why we go for Thevenin's equivalent in this particular voltage divider bias. So using KVL for input and output loop, we can get again the equations for the base and collector currents. Now the thing is, another one is voltage feedback biasing. So we apply a feedback resistance over here, which is RB, feeding back the collector current back into the this one base terminal. So using again KVL, we can get this equation for and to get IB and IC. Input current, which is IB, and output current, which is IC. So that's the main idea, to get the input current and output current equations out of these. So based on this,
Output current is calculated using KVL. So this is output current over here for the output characteristics. And if we go for the input characteristics, we have IB current as the input. So this IB current is calculated from these KVL equations. And based on this base current, we can decide how much collector current we want to have. So let's say we want to have this much collector current. So this operating point, and we can have a collector current of 3 amperes, milliamperes. So based on that, we can easily find out the VCE, which is the output voltage. VCC is the input supply voltage. VCE is the output voltage, this one. This output voltage is across collector and emitter, VCE. So you have to remember all these things. Okay. So now, stabilization, because we know that these are the 3 parameters which are basically the reasons for unstable biasing, means the instability in the Q point. So these are these 3 basic reasons for that. So before going further, let's find out the definition of transfer characteristics. This one we already know. These are the output characteristics, means this is the output voltage for collector emitter, common emitter. So this is the voltage across collector and emitter. And this is the current in the collector, which is the output current, and this is the output voltage. So सर लोड लाइन क्या होता है? लोड लाइन है, लोड लाइन मैंने कल बताया ना आपको, लोड लाइन मैंने कल बताया आपको कि लोड लाइन वो होती है जो मैक्सिमम आउटपुट पॉइंट यहां पर ले लो, जहां पर कट ऑफ होता है ट्रांजिस्टर, तो वो कहां कट ऑफ होता है, जहां पर मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज हम मेजर कर सकते हैं. तो आप जानते हो कट ऑफ मींस ओपन सर्किट, मींस ऑफ. ट्रांजिस्टर जब ऑफ होगा तो ओपन सर्किट होगा. ओपन सर्किट में वोल्टेज मैक्सिमम होती है. वो जो वैल्यू मैक्सिमम की होगी वो इक्वल टू वीसीसी होगी. आइडियली जो भी सप्लाई वोल्टेज हमने वीसीसी दे दी, मान लो 10 वोल्ट्स दे दी, तो वो 10 वोल्ट्स पूरी की पूरी कलेक्टर एमिटर जो कि आउटपुट वोल्टेज है उसके क्रॉस आ जाएगी. सो वी आउटपुट इज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज वीसीसी. तो वो होगी हमारी वीसीई कट ऑफ. तो वो मैक्सिमम पॉइंट ले लिया, उसको यहां पर ड्रॉ कर लिया. फिर हम क्या करेंगे, सैचुरेशन में लेके जाएंगे ट्रांजिस्टर को. ट्रांजिस्टर मींस फुली ऑन, मैक्सिमम करंट. सो जब मैक्सिमम करंट होगा तो वोल्टेज बिल्कुल जीरो होगी. आइडियली अगर मैं बात करूं, आइडियली में जब करंट मैक्सिमम होता है, रेजिस्टेंस जीरो है, तो V इक्वल टू IR के हिसाब से देख लो तो वोल्टेज जो है वो जीरो हो जाएगी. तो वो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आइडियली, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जो करंट जहां पर हमें मिलेगा वो कहलाएगा IC सैचुरेशन. मींस अब ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में चला गया, इसके ऊपर अब करंट इंक्रीज नहीं होगा, ये मैक्सिमम करंट हुआ. वो पॉइंट ले लिया, उन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लिया. So we join these 2 points, the maximum current point and the maximum voltage point. We join these and we draw a straight line, and that straight line is now called the load line. Why? Because now the operating point of a transistor will be located only on this load line. So transistor will be operated only on this load line. Either at this point, IB equal to 5. So IB equal to 5, either the transistor will operate on this point or on this point or on this point, and so on. So this is the load line, means the transistor operates only on these points where the intersection between the input current IB, which we have already found out using the KVL, and the output current IC, this one. So this output Q point क्या होता है सर? हैं? सर Q point मैंने बोला अभी भी,
कि ऑपरेटिंग पॉइंट भी जहां पर ट्रांजिस्टर ऑपरेट करता है, ये सर्किट है हमारे पास, ये सर्किट है हमारे पास, दिस इज द सर्किट, लेट्स से दिस इज एन एम्पलीफायर। तो ये हमारे पास जो सर्किट है, इस सर्किट को, इस सर्किट में ट्रांजिस्टर इज वर्किंग एज एन एम्पलीफायर। सो इस ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करवाना है हमने, कुछ वैल्यू यहां फिक्स की इनपुट वोल्टेज, कुछ वैल्यू सप्लाई वोल्टेज फिक्स की जो ट्रांजिस्टर की सप्लाई है, जिससे कि जो चार्ज कैरियर्स मूव करना शुरू हो जाएं। तो नाउ दिस ट्रांजिस्टर स्टार्ट्स टू ऑपरेट। तो जब चार्ज कैरियर्स मूव ऑन होते जाएंगे बेस्ड ऑन द फॉरवर्ड बायस ऑफ द बेस एमिटर जंक्शन एंड द रिवर्स बायस ऑफ द बेस कलेक्टर जंक्शन, तो उस हिसाब से हमने सप्लाई वोल्टेज कनेक्ट कर दी। अब ट्रांजिस्टर वर्क करना शुरू हो गया। सो अब ये ऑपरेट होना शुरू हो गया। जब ये ऑपरेट होना शुरू हो गया, कुछ एक बेस करंट होगा इसके अंदर, जो कि इस यहां से आया इनपुट सप्लाई की वजह से बेस करंट फ्लो होना शुरू हुआ। ये जो सप्लाई है VCC, इसकी वजह से कलेक्टर करंट फ्लो होना शुरू हुआ। So this is the base current flowing due to this, and this is the collector current flowing due to this. तो जब ये करंट फ्लो होना शुरू हो गए तो ट्रांजिस्टर इज नाउ इन अ वर्किंग कंडीशन और इन ऑपरेटिंग रीजन। तो जब ये ऑपरेट होना शुरू हो गया तो ये इस रीजन में हो सकता है, ये वाला, either it is operating in this active mode or in pure saturation or in cut off। तो जब कट ऑफ रीजन में ट्रांजिस्टर, वही वाला सर्किट का ट्रांजिस्टर जब वर्क करेगा तो इट मींस कलेक्टर करंट जीरो हो जाएगा। तो जब कलेक्टर करंट जीरो होगा, नो कलेक्टर करंट विल बी फ्लोइंग, तो ये बंद हो जाएगा कलेक्टर करंट फ्लो होना, तो ये जो ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा। नाउ ट्रांजिस्टर इज ऑफ, सो नो कलेक्टर करंट इज फ्लोइंग। तो वो वाला जो ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा वो कट ऑफ रीजन होगा, ये वाला। तो कोई कलेक्ट, तो जब फिर हम कहें कि नहीं अब हमें ट्रांजिस्टर फुली ऑन चाहिए, तो फुली ऑन के लिए क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट इज दिस VCC डिवाइडेड बाय RC, बस। तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, तो दैट इज द IC सैचुरेशन। तो IC सैचुरेशन जो होगी उसमें मैक्सिमम करंट होगा। बट नॉर्मली इन एम्पलीफायर मोड द ट्रांजिस्टर वर्क्स इन एक्टिव मोड। तो ट्रांजिस्टर जब एक्टिव मोड में होगा, या तो फिर इस पॉइंट पे वर्क करेगा जहां ये लोड लाइन जो हमने ड्रॉ की पहले, वो क्रॉस कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है बेस को, बेस करंट को। तो मान लो हमने बेस करंट पहले दिया था 5 माइक्रो एम्पियर्स, वो कैसे चेंज कर रहे हैं हम बेस करंट? हम बेस करंट इसको ऐसे चेंज कर रहे हैं, ये हमने इसको वेरिएबल बना दिया, ये वेरिएबल वोल्टेज बना दी हमने। तो वेरिएबल वोल्टेज की वजह से पहले 5 माइक्रो एम्पियर फ्लो कर दिया, इंक्रीज कर दिया इस वोल्टेज को 10 माइक्रो एम्पियर बेस करंट, और इंक्रीज कर दिया 15 माइक्रो एम्पियर्स, एंड सो ऑन। तो ऐसे ही बेस करंट इंक्रीज होता जा रहा है, ये बेस रेजिस्टेंस फिक्स्ड है, ये चेंज होता जा रहा है। तो इसी की वजह से IC करंट भी चेंज होता जा रहा है बाय मल्टीप्लाइंग बाय बीटा। सो बीटा मल्टीप्लाई बाय IB विच इज नाउ चेंजिंग, वी गेट अ चेंज इन IC करंट। तो वही चेंज IC करंट हमें यहां दिख रहा है, ये वाला। सो बेस करंट इज 5 माइक्रो एम्पियर्स एंड कलेक्टर करंट इज 1 मिली एम्पियर, ये वाला। अगर बेस करंट हम इंक्रीज कर जाते हैं 10 माइक्रो एम्पियर, तो हमारा कलेक्टर करंट हो जाता है 2 एम्पियर मिली एम्पियर्स। बेस करंट हमने और इंक्रीज कर दिया 15 माइक्रो एम्पियर, ये वाला, ये जो लाइन है ये। तो ये जब इसको हम यहाँ पैरेलल में, तो ये नाउ यहाँ पर करंट प्रोजेक्ट होता है, आउटपुट करंट, कलेक्टर करंट 3 मिली एम्पियर्स। तो इट मींस ये मल्टीप्लाई बाय बीटा करके देख लो कितना हो जाएगा, 15 माइक्रो एम्पियर डिवाइडेड, सॉरी 3 मिली एम्पियर्स डिवाइडेड बाय 15 माइक्रो एम्पियर्स विल गिव अस द वैल्यू ऑफ बीटा विच इज 20। तो 20 के आसपास, ये 200 है, हाँ 200 के आसपास हमारे पास वो बीटा की वैल्यू आ जाएगी।
ठीक है ना, बीटा आई बी इक्वल टू आई सी। तो 200 बीटा है इसमें, तो इस तरह से ये चेंज हो रहा है। तो हम फिर अगर ये लोड लाइन में से चेंज करते तो लोड लाइन पे ही ऑपरेट करेगा। अब ट्रांजिस्टर इस यहां ऑपरेट कर रहा है, तो फिर और ट्रांजिस्टर को ऊपर लेके जाएंगे, बेस करंट और इंक्रीज हो गया और कलेक्टर भी इंक्रीज हो गया। अब अगर और ज्यादा ऊपर चले जाएंगे तो बेस करंट जब हम 25 माइक्रो एम्पियर कर देंगे तो अब हमारा जो कलेक्टर करंट जो आउटपुट है 5 मिली एम्पियर है, तो इसके ऊपर नहीं जा रहा है। तो इट मींस ये अब ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में चला गया, अब ये एम्पलीफायर नहीं काम करेगा। तो एम्पलीफायर अगर इसको एज एम्पलीफायर काम करवाना है तो इसको यहाँ या यहाँ पर ही काम करवाना पड़ेगा। ये 4 पॉइंट्स हैं, 20 माइक्रो एम्पियर बेस करंट, 15, 10 और 5। तो ट्रांजिस्टर मस्ट वर्क फ्रॉम 5 to 20 माइक्रो एम्पियर्स ऑफ बेस करंट so that the transistor keeps on working as an amplifier। तो ये है इसका सारा खेल। तो वो कैसे होगा, ये शिफ्टिंग कैसे हो रही है 5 to 10, 10 to 15 और 20 बाय यूजिंग बाइसिंग सर्किट। तो वो बाइसिंग सर्किट्स ये वाले हैं 4 सर्किट। इन्हीं बाइसिंग सर्किट्स में ये सब वैल्यूज चेंज करके हम लोड लाइन पे जो ऑपरेटिंग पॉइंट है, तो ये सारे क्यू पॉइंट्स हो गए। क्यू पॉइंट मींस ऑपरेटिंग पॉइंट इन आइडियल कंडीशंस और एज डिजायर्ड। बट इन रियलिटी ये पॉइंट हमने ये कैलकुलेट करके रख लिया, लेकिन ड्यू टू वेरिएशंस इन बीटा आईसी दैट लीकेज करंट और द वीबीई, ये थोड़ा सा वेरी करता है। तो कभी ये यहां पर आ जाएगी इसकी वैल्यू, कभी ये यहां पर आ जाएगी इसकी वैल्यू। हमने चाहा यहां पर है क्यू पॉइंट पे, लेकिन कभी इधर हो रहा है कभी इधर हो रहा है। तो इट मींस इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग ओवर हेयर, ऑल्टरनेटिंग ओवर हेयर। तो वो हमें यहां तक तो हम कर सकते हैं कि ठीक है, ये जो है 3 मिली एम्पियर पे तो हमने रखा क्यू पॉइंट, 3 मिली एम्पियर पे, 3 मिली एम्पियर पे क्यू पॉइंट रखा। ये कभी 3.5 तक जा रहा है, कभी 2.5 तक जा रहा है। तो इट इज एक्चुअली दिस क्यू पॉइंट, दिस ऑपरेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज वर्किंग बिटवीन 2.5 मिली एम्पियर्स एंड 3.5 मिली एम्पियर्स ऑफ आउटपुट करंट। तो हम कहेंगे ठीक है, ये चल जाता है, इतना चलेगा। कभी स्पीकर की आवाज ज्यादा हो रही है कभी कम, कभी थोड़ी सी डिस्टॉर्शन ज्यादा हो रही है कभी कम, चल जाएगा। लेकिन अगर इसके ऊपर यहां तक पहुंच गया और मिनिमम वैल्यू यहां तक पहुंच गई, चाहिए हमें ये पॉइंट, लेकिन वेरिएशन इतनी ज्यादा है बीटा में और उसमें बाकी 3 पॉइंट्स जो मैंने 3 वेरिएबल्स जो बताए, तो वो कभी 4 तक पहुंच रहा है कभी 2 तक पहुंच रहा है। तो हम कहेंगे नहीं, ये ठीक नहीं है, ज्यादा वेरिएशन हो गई। तो ज्यादा वेरिएशन जो आउटपुट स्पीकर पे हमें नॉइस की तरह दिखेगी। कई बार स्पीकर पे हम थोड़ी बहुत डिस्टॉर्शन मान लेते हैं, हम कहते हैं नहीं इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। कभी कहते हैं नहीं ज्यादा हो रही है डिस्टॉर्शन, आवाज नहीं आ रही है, जब कभी ज्यादा हो रही है, कभी बिल्कुल कम हो रही है, कभी कट रही है आवाज। तो दैट इज ओनली ड्यू टू द डिस्टॉर्शन। एंड डिस्टॉर्शन क्या है, द वेरिएशन ऑफ द क्यू पॉइंट फ्रॉम द डिजायर्ड वैल्यू। तो डिजायर्ड वैल्यू थी 3 मिली एम्पियर, लेकिन कभी 2 पे जा रहा है कभी 4 पे। तो लोड लाइन पे ही रहेगा, लेकिन कभी ऊपर नीचे हो रहा है। तो वो जो रीजन है वो इसको बोलेंगे अनस्टेबल क्यू पॉइंट और अनस्टेबल बाइसिंग। बाइसिंग तो हुई लेकिन अनस्टेबल है, वो हमें कम करनी है। वी नीड टू इंप्रूव ऑन दैट, नॉट फुली रिमूव इट। फुली रिमूव होना पॉसिबल नहीं है इन रियलिटी। आइडियली तो हो जाएगा, in reality it's not possible. So we need to make a circuit, we need to design some circuit so that the variation in the Q point or the operating point जहां जो हम चाहते हैं तो should be minimized। तो अब समझ आई सबको? यस हेलो, सर। यस सर। हाँ सर एक चीज यस पूछनी सर। थी हाँ, बोलो बोलो। सर, वो जो ग्राफ तक लोड लाइन वाला, ये वीडियो देख लेना, क्या समझा नहीं, क्या बोल रहे हो? सर वो जो लोड लाइन वाला ग्राफ था हाँ, उसमें वो जो क्यू पॉइंट है उसी पे वो वर्क करेगा, बस उसके लेफ्ट राइट नहीं जा सकता? नहीं लेफ्ट राइट जाता है, मैंने तभी तो अभी बोला ना, तभी तो बोला कि अगर हमारा क्यू पॉइंट हमने रख दिया, जैसे अभी मैं फोन पे ये बात लेक्चर दे रहा हूं, तो ये कोई ऑपरेटिंग पॉइंट है सर्किट का, जो इसका जो एम्पलीफायर काम कर रहा है, तो वो मान लो 3 मिली एम्पियर है।
तो ये क्यू पॉइंट हमारा फिक्स्ड है सर्किट के हिसाब से, जो हमने एज रिक्वायर्ड हमने देख लिया कि स्पीकर पे इतनी आवाज आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन वेरी भी हो रहा है, कभी कम हो रही है आवाज, कभी ज्यादा हो रही है, वहां तक पहुंच रही है, तो वो कभी 2.3.5 तक जा रही है, वैल्यू ज्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है 2.5 तक। तो हम कहेंगे नहीं इतना चलता है एज अ ह्यूमन बीइंग। तो जो यहाँ पर हेयरिंग जो है कैपेबिलिटी है, जो ईयर है, ह्यूमन ईयर है या हियरिंग कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से ठीक है, मुझे इतना वो नॉइजी डिस्टॉर्टिव नहीं दिख रहा है। सर तो मैं ये पूछूं सर, जैसे 3 है, तो 3 पे क्यू पॉइंट की पे VCE 5 भी हो सकते हैं 6 4 की जगह। ये VCE 4 है, हाँ 5 हो सकता है, ये तो एग्जांपल दे रहा हूं मैं आप लोगों को। ये आपको ये डिसाइड, ये तो एप्लीकेशन डिसाइड करेगी ना कि ये क्यू पॉइंट रखना है या यहाँ पर क्यू पॉइंट रखना है। अगर यहाँ रखना है क्यू पॉइंट तो एक लोड लाइन यहाँ बनानी पड़ेगी हमें, ऐसे ऐसे भी बना सकते हो लोड लाइन। तो ये एक लोड लाइन भी बना सकते हो, ये वाली लोड लाइन। तो फिर ये ऑपरेटिंग पॉइंट सारे इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ये सारे, ये वाला इधर हो गया, ये वाला इधर हो गया, इस तरह से ये अब लोड लाइन ये हो गई। ऑपरेटिंग क्यू पॉइंट्स विल कीप ऑन मूविंग ऑन दिस लोड लाइन, तो नाउ वी विल हैव अ न्यू क्यू पॉइंट ओवर हियर। तो वो एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिपेंड करता है। अगर कॉन्सर्ट में जाना है, म्यूजिक बहुत लाउड चाहिए, तो हमारी लोड लाइन फिर यहां तक जानी चाहिए और भी आगे जानी चाहिए, ऐसे वो डिपेंड करता है कौन क्या एप्लीकेशन है। और फिर वो ट्रांजिस्टर भी बड़ा होना चाहिए, तो 10 वोल्ट वाला ट्रांजिस्टर वर्क नहीं करेगा, फिर उसमें उसमें हो सकता है फिर 50 वोल्ट्स वाला ट्रांजिस्टर चाहिए। तो ये वाली वैल्यू सारी चेंज हो जाएंगी। तो ये मैक्सिमम जो VCE कट ऑफ है वो 50 वोल्ट्स होगी। तो वो ये एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये हमेशा ये फिक्स नहीं वैल्यूज हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन यू कैन डिसाइड ऑन ऑल द वैल्यूज। तो अगर बहुत लो सिग्नल चाहिए, बहुत ही स्मॉल सिग्नल चाहिए, तो फिर वो लोड लाइन यहां भी आ जाएगी कि 4 वोल्ट के ऊपर काम नहीं करेगा। तो वो डिपेंड करता है तो किस तरह की एप्लीकेशन है। तो लोड लाइन एप्लीकेशन के हिसाब से होगी। और ऐसे कोई बड़े ज्यादा म्यूजिक सिस्टम है, बहुत लाउड म्यूजिक सिस्टम है, 100 dB 110 dB का, तो वैसे उसके साथ तो इंसान मर भी सकता है, ज्यादा साउंड हो तो वो तो बहुत ऊपर तक जाता है उसका लोड लाइन, तो बहुत ही ऊपर। तो वो हमें नहीं, हम तो एग्जाम्पल, एक छोटी सी एग्जाम्पल दी है कि ये वेरिएशन होगी, ये वेरिएशन जरूर होगी इन रियलिटी। लेकिन हम क्या चाहते हैं, ये जो वेरिएशन है, ये जो वेरिएशन है हम चाहते हैं 0.5 ऊपर, मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम 3 to 3.5 एंड 3 to 2.5। तो इससे नीचे ना जाए सिग्नल, जो एम्पलीट्यूड है, जो आउटपुट वोल्ट स्पीकर पे जो एम्पलीट्यूड है, इसके ऊपर ना जाए, तो इसके बीच में रहेगा। तो हम कहेंगे यस इट इज सफिशिएंट फॉर ह्यूमन ईयर, हम इतना बर्दाश्त कर लेंगे, इतनी ज्यादा डिस्टॉर्शन हम समझ लेंगे, चल जाएगा। लेकिन अगर ज्यादा डिस्टॉर्शन हो जाएगी, एकदम से लाउड हो गया, एकदम से बंद हो गया, कट ऑफ हो गया, सिग्नल पता ही नहीं चला, तो हम भी इरिटेट हो जाएंगे, यार ये ठीक नहीं है। तो फिर हम कहेंगे नहीं, ये सर्किट स्टेबल ही नहीं है, मुझे तो एक नया सिस्टम लाना चाहिए। सोनी का ले आते हैं, सोनी वालों का सिस्टम बड़ा अच्छा है, उसमें डिस्टॉर्शन कम है, इसी को डिस्टॉर्शन बोलते हैं कि ओके विद इन द लिमिट्स। प्योर तो साइन वेव यहीं पर ही मिलेगी, लेकिन अगर ऊपर नीचे थोड़ा सा हो रहा है तो ठीक है, चल जाएगा। ज्यादा ऊपर नीचे हो गया तो ज्यादा डिस्टॉर्शन हो जाएगी, तो वो हम नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए हमें स्टेबिलिटी के लिए सर्किट बन चाहिए, फॉर स्टेबिलिटी। सिर्फ ये क्यू पॉइंट लोड लाइन पे रहेंगे ना, हाँ तो वो हिलेंगे नहीं ना? ना वो लोड लाइन पे ही रहेगा। ओके सर। अगर वो ऊपर नीचे चला गया तो इसका मतलब पूरा सर्किट फॉल्टी है, वो कहीं ना कहीं कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया है, कहीं ओपन सर्किट हो गया, तो वो फिर सर्किट ही खराब हो जाएगा, वो फिर काम ही नहीं करेगा सर्किट। तो फिर वो पूरा नया सर्किट वो या बर्न हो जाएगा सर्किट, या खराब हो जाएगा, कुछ ऐसा। लेकिन वर्किंग कंडीशन में वो सिर्फ लोड लाइन पे ही रहेगा।
तो ये हो गया। ये अब ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स बस सिंपल सी बात है। ये क्या है? VBE विच इज द इनपुट वोल्टेज, दिस इज IC विच इज द आउटपुट करंट। तो रिलेशन बिटवीन इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट will give us the transfer characteristics. So it is called transfer. We are transferring from input to the output. So इसलिए इसको ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं, वो भी जरूरत होती है। एक हो गया इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, रिलेशन बिटवीन इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट। एक हो गया आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट, जो मैंने आपको बताए सारे सर्किट्स के बीच में से, ये सारा इनपुट सर्किट, आउटपुट सर्किट, ठीक है ना। ये आउटपुट सर्किट है, ये इनपुट सर्किट है। तो ये सबसे पहले वाले मैं बताता हूँ, ये वाला एग्जाम्पल बिल्कुल सी। तो इनपुट सर्किट हो गया, बेस एमीटर लूप। तो इसमें जो रिलेशन है बेस करंट और बेस वोल्टेज का है। तो ये जो है VCC दैट इज द सप्लाई वोल्टेज। इसमें है IC करंट रिलेशन विद द VCE वोल्टेज। तो ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होगा आउटपुट सर्किट में। लेकिन अगर हम दोनों में यहां शिफ्ट कर रहे हैं, इनपुट और आउटपुट में, तो या तो IB करंट विद रिस्पेक्ट टू VCE विच इज द आउटपुट वोल्टेज एट द स्पीकर, और कितना माइक्रोफोन पे करंट है। अगर साउंड हम बहुत ऊंचा बोलेंगे, जितना ऊंचा बोलेंगे उतना ही माइक्रोफोन पे IB करंट ज्यादा होगा, ठीक है। तो वो माइक्रोफोन जनरेट करेगा करंट, तो वो जितना ऊंचा बोलेंगे दैट साउंड सिग्नल इज देन कन्वर्टेड इनटू वोल्टेज सिग्नल, और जितनी वोल्टेज अप्लाई होगी जो उसकी वजह से, उतना ही करंट ज्यादा होगा। तो IB करंट हमारे बोलने के हिसाब से चेंज हो रहा है ऊपर नीचे, और जब ये चेंज हो रहा है ये भी चेंज हो जाएगा IC करंट भी। तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें। सर तो RB भी चेंज होगा? RB हमारे हाथ में है, हम करना चाहें तो RB भी चेंज होता है। नॉर्मली ये RB भी वेरिएबल होता है। साउंड के ऊपर नहीं होगा RB है? सर जो बोल रहे हैं IB जितना ज्यादा साउंड देंगे उतना ज्यादा IB बढ़ेगा। हाँ, क्योंकि आप जानते हो ना, साउंड सिग्नल कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो जितना साउंड हम ज्यादा ऊंचा बोलेंगे उतनी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्शन ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उतनी कन्वर्ट ज्यादा होगी, और जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी उतना ही करंट ज्यादा फ्लो होगा। और RB जो है डिपेंड करता है कौन सा मैन्युफैक्चरर है। अगर लो कॉस्ट लोकल मैन्युफैक्चरर है तो उसमें RB की वैल्यू उस तरीके से कैलकुलेट अच्छी तरह से नहीं होगी। अगर सोनी का माइक्रोफोन लेते हो तो उसमें ये RB की वैल्यू उसी हिसाब से एडजस्ट की होती है कि ये जो इनपुट हमारा साउंड सिग्नल जितना ऊपर नीचे जाए उसके हिसाब से ये एडजस्ट वेरिएबल होगा, लेकिन एडजस्टेबल होगा ऑटोमेटिकली। लेकिन वो बाद की बात है, अभी मैं वो डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन अभी आपको मैं सारा आइडिया दे रहा हूं, समझ आ रही है आपको? यस सर। तो ये है, अब ये हो गए हमारे पास इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट। तो ये जो इनपुट वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने डेफिनेशन बताई आपको, ये वाली। अब ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, ये वेरिएशन जो हमने बताया 3 पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से जो क्यू पॉइंट है वेरी होता है, बीटा, VBE और ICO। ICO इज द लीकेज करंट। तो इसकी वजह से ये चेंज होता है। तो वो मेन रीजन क्या है? टेम्परेचर। तो ऐसे होगा जैसे टेम्परेचर अगर 50 डिग्रीज है तो उसमें ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह से होंगी। तो ये मान लो कट ऑफ इसका है जिसको थ्रेशोल्ड बोलेंगे 0.7 है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया 100 तक ले गए तो वो जल्दी ही थ्रेशोल्ड पहुंच जाएगी, 0.4 पे ही पहुंच जाएगी। और 150 और इंक्रीज कर दिया तो जल्दी। तो इट मींस द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कीप्स ऑन चेंजिंग एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर। तो इसकी वजह से क्या होगा, ट्रांजिस्टर बड़ी जल्दी ऑन हो जाएगा, कभी देर बाद ऑन होगा। तो हम भी जानते हैं जब थ्रेशोल्ड पहुंचती है तो ट्रांजिस्टर टर्न ऑन हो जाता है। तो वो फिर ट्रांजिस्टर कभी जल्दी ऑन होगा, कभी ऑफ होगा। तो उसकी वजह से ये जो है डिस्टॉर्शन होगी, नॉइस होगा। तो उसी को कम करना है बस। तो ये हो गया आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। कॉमन एमीटर की ही बात करें, ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, रिलेशन बिटवीन इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट। सॉरी, ये वाला कॉमन बेस की बात कर रहा हूं। अब आ जाती है, टाइम कम है,
तो हमें अब ऐसा सर्किट बनाना है बाइसिंग के साथ ही स्टेबलाइजेशन के लिए, जो कि वी नो दैट जो कि शिफ्ट ना हो हमारा क्यू पॉइंट। तो हमारा चाहे टेम्परेचर वेरी होता रहे, चाहे वो नया ट्रांजिस्टर लगाया हो, पुराना जल गया हो, पुराना फॉल्टी है, सो इफ द ओल्डर वन इज फॉल्टी, सो वी exchange it with the new one, so some variation will be there, we know that, or it may be due to the temperature variation. So all these reasons, still we want to have a stable Q point. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें इनकी डिपेंडेंसी को कंट्रोल करना है। So again, the process of making operating point, which is Q point, independent of temperature changes. So that's the basic idea, to design a circuit in such a way that variations in temperature actually do not affect the variation in, or actually do not affect the working of a transistor circuit. तो ये है, इसके लिए फिर हमें क्या करना है, हमें पहले टर्म्स ये डिफाइन कर ली। सो वन इज अ स्टेबिलिटी फैक्टर S ड्यू टू as a change of collector current with respect to the reverse saturation current. So reverse saturation current means leakage current. So this stability factor S will just keep these beta and input voltage constant, but only with respect to the leakage current it will vary. So based on this definition, we have this stability factor S equal to rate in change of collector current, which is the output current, because output पे ही हमें स्पीकर लगाया है, डिस्टॉर्शन वहीं पर फाइंड आउट करनी है। So rate of change of the output current with respect to the leakage current. तो ये हम देखते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में कैसे इसको फाइंड आउट किया है। Now the second stability factor is variation of the, or rate of change of the collector current at the output with respect to the change in input voltage VBE. Third one is rate of change of the output collector current with respect to change in beta, the current gain. So तीनों के लिए अलग अलग हमारे पास stability factors बन गए। So with respect to each of these three parameters, we are actually measuring the rate in change of the collector current. तो सबको जब इकट्ठा कर दिया, okay, so this equation you have already done in basic electronics. The collector current is equal to this, we know that, beta times IB plus the leakage current. So now we have to understand that this leakage current is actually a strong function of temperature. Means if we slowly increase the temperature by 10 degrees only, it actually doubles. So it actually doubles. So this parameter is very much dependent upon the temperature variation. तो अगर टेम्परेचर 50 to 100, 100 to 150 तक वेरी हो जाए तो मान के चलो कितना ज्यादा वेरिएशन हो जाएगी इसमें। सो दैट्स वाई हमें कुछ ऐसा करना है कि वेरिएशन, द इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ कलेक्टर करंट विद रिस्पेक्ट टू दिस मस्ट बी मिनिमाइज्ड। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर 10 डिग्री भी इंक्रीज हो जाएगा तो ये जो है पैरामीटर डबल हो जाता है। सो दैट्स वाई वी नीड टू, और ये टेम्परेचर कैसे इंक्रीज होता है, सबसे पहले ये दो मिनट में ये आपको बताऊं। टेम्परेचर एक तो आउटसाइड एनवायरनमेंट की वजह से चेंज होगा, एक जो सर्किट ऑपरेट कर रहा है एज अ ट्रांजिस्टर, एज एन एम्पलीफायर या कोई भी सर्किट, तो जब वो ट्रांजिस्टर या बाकी जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में जब करंट फ्लो होगा तो हीट प्रोड्यूस होगी I²RT, फिर टेम्परेचर भी ट्रांजिस्टर में, हाँ जी हाँ जी हाँ, तो जो क्या बोलते, हाँ, जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर ऑल्सो जब कीप्स ऑन वर्किंग फॉर लेट्स से 1 hour
or the transistor circuit keeps on working for 2 hours. So it keeps on emitting the heat or dissipating the heat through resistors by I square RT and through transistors. तो ये इतनी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, उसकी वजह से द सर्किट टेम्परेचर विल इंक्रीज, एंड बाय दिस टेम्परेचर वी कैन से दैट द ट्रांजिस्टर कैन ऑल्सो गेट डिस्ट्रक्टेड, एंड दिस इज कॉल्ड थर्मल रनअवे. और ये कई बार हमने देखा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, डिवाइस हॉट हो जाता है, तो इतना हो जाता है हर्ट के वो ट्रांजिस्टर बर्न हो जाता है. दैट इज कॉल्ड थर्मल रनअवे. तो हमें वो उसके लिए फिर क्या करते हैं हम, वी यूज हीट सिंक फॉर दैट. तो हीट सिंक क्या करता है, वो सिंक करेगी हीट को, तो वो जो सर्किट का टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट कम ही रहेगा और स्टेबल ही रहेगा. बट वी वांट टू हैव एन एक्टिव सर्किट आल्सो कॉल्ड स्टेबलाइजेशन, स्टेबल सर्किट. वो हम देखेंगे, वो मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास में करना पड़ेगा. लेकिन ये जो है ना डेफिनेशंस, दीज डेफिनेशंस यू हैव टू रिमेंबर. ये रिमेंबर करने वाली है. एक तो हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ द आउटपुट करंट, कलेक्टर करंट विद रिस्पेक्ट टू दिस लीकेज, और बाकी दो जो हैं स्टेबिलिटी फैक्टर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस output collector current with respect to input voltage and with respect to the current gain. तो इससे हम इजीली स्टेबिलिटी फैक्टर को फाइंड आउट कर लेंगे. तो ये फाइंड आउट करके, ये मैं नेक्स्ट में ही बताऊंगा, फिर इसमें यूज करना है. इसमें यूज करके इजीली हम फिर देख लेंगे कि वी कैन डिसाइड ऑन हाउ मच वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस वी हैव टू कैलकुलेट, और how much value of resistance we have to decide for this particular circuit. और जो हमने फिर वो कर लिया based on this calculation, हमने exact value of resistances find out करके, calculate करके, यहाँ same resistance, तो फिर stability factor जो है वो improve हो जाएगा. तो फिर हमारे पास क्या होगा, जो हम बोल रहे थे कि अनस्टेबल हो जाता सर्किट, फिर वो नहीं होगा. तो वो सिर्फ इतना ही है कि हम ऐसी कैलकुलेशन करें बेस्ड ऑन द इवैल्यूएशन ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर, एंड बेस्ड ऑन दिस इवैल्यूएशन वी कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ द रेजिस्टेंसेस, एंड बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेशन वी यूज द सेम वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंसेस. उसकी वजह से ये बाइसिंग जो क्यू पॉइंट्स है वो डिस्टर्ब नहीं होगा ज्यादा. तो ये मैंने अभी मोटा मोटा आपको बता दिया. तो मैथमेटिकली इट विल टेक अबाउट 15 मिनट्स. मैथमेटिकली 15 मिनट में ये हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअली आप समझ गए हैं? ये सर ये जो हाँ. थर्मल रन अवे था, ये इंटरनल हीट के कारण होता है ना? इंटरनल, हाँ, ये इंटरनल हीट ज्यादा रीजन जो है इंटरनल हीट है. एक्सटर्नल हीट में इतनी वेरिएशन होती नहीं है. जैसे एक्सटर्नल हीट तभी होगा, मान लो हमने डिजाइन किया सर्किट वहां बैठ के नॉर्वे में, ये होता है कई बार. तो नॉर्वे में बैठे डिजाइन किया हमने सर्किट, तो वहीं के एनवायरनमेंट में हमने टेस्टिंग कर दी और हमने बोल दिया ओके है. एकदम से वो कहीं डेजर्ट में जाके काम करना शुरू हो गए उसी सर्किट पे, तो वो आउटसाइड टेम्परेचर बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली. उसकी वजह से थर्मल रनअवे जो होगा वो जल्दी पिकअप करेगा, क्योंकि आउटसाइड टेम्परेचर भी क्रीप इन करेगा. तो वो आउटसाइड टेम्परेचर और जो इंटरनल टेम्परेचर हीट है, जो रेजिस्टेंस की वजह से है या जो ट्रांजिस्टर्स की वजह से, वो दोनों ऐड ऑन हो जाएंगे. तो फिर वो थर्मल रनअवे बड़ा फास्ट होगा. तो वो थर्मल रनअवे होगा इंटरनली, सिर्फ इंटरनल, क्योंकि अंदर क्या होगा, वो सेमीकंडक्टर बर्न अप हो जाएगा. तो इतना बर्न अप हो जाएगा कि वो ट्रांजिस्टर जो है वो क्या बोलेंगे, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. तो वो बर्निंग अप जो है वो आपने की होगी, फिर भी चलो मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे होती है. तो वो जो है उसकी वजह से एक हॉटस्पॉट क्रिएट हो जाते हैं सिलिकॉन की एक छोटे से एरिया में एकदम से. तो वो हॉटस्पॉट जब जनरेट हो गए थोड़ा सा भी, तो उसी वक्त ट्रांजिस्टर खराब हो जाता है, उसी वक्त. तो ये मैं बताऊंगा आपको साथ साथ, अभी नहीं, एकदम से नहीं, धीरे धीरे बताता जाऊंगा. तो वो उसको हॉटस्पॉट्स बोलते हैं. तो वो थर्मल रनअवे की वजह से होता है.
तो थर्मल Okay, रन sir. अवे होगा ये सब रीजंस की वजह से। तो उसी को हमने कंट्रोल करना है। तो वो कैसे करना है, इसकी वैल्यूज ऐसी कैलकुलेट करें इन रेजिस्टेंसेस की कि वो थर्मल रन अवे का उतना इफेक्ट ही ना पड़े इसके ऊपर, ट्रांजिस्टर के ऊपर। वो ज्यादा से ज्यादा हीट यहीं पर एब्जॉर्ब हो जाए, या इस रेजिस्टेंस में हो जाए या इस रेजिस्टर में, ट्रांजिस्टर पे फर्क ही ना पड़े। तो रेजिस्टेंस अगर हीटेड अप हो भी जाएगा तो इतनी जल्दी से खराब नहीं होता, ट्रांजिस्टर बड़ी जल्दी खराब हो जाता है ड्यू टू द हॉट स्पॉट्स। ठीक है, Okay, sir. तो ये बस ओके सर। ये हाँ 15 मिनट में हम अब मैथमेटिकली ही करना रह गया इसको। तो ये हम 3-4 स्लाइड्स हैं, ये मैथमेटिकली 15 मिनट में कर लेंगे, तो फिर एम्पलीफायर पे चलेंगे। ओके, कोई डाउट तो नहीं है अभी? No, sir. ओके ओके देन, तो टिल नेक्स्ट क्लास, ठीक है। ये मैं अपलोड कर दूंगा, ये अपलोड उसमें हो जाएगी, ये जो लेक्चर है। सर इसका लैब भी होगा आज? लैब आज तो नहीं फिर कर पाएंगे, नेक्स्ट वीक से शुरू करते हैं। ठीक है। मैं आपको मैनुअल भी भेजूंगा ना, नेक्स्ट वीक शुरू में ही भेज दूंगा मैनुअल। सर ठीक है ना? इसके लिए सर कोई अलग से बुक नहीं लेना सर, बॉल स्टेट की बुक चल जाएगी इसके लिए भी नहीं सर? हाँ हाँ हाँ, बॉयल स्टेट की चल जाएगी, अलग से कोई जरूरी नहीं है। अगर हुआ वैसे आपने अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़नी हुई तो मैं ई बुक देख लूंगा, मेरे पास एक थी तो सही, मैं ढूंढ के थोड़े दिनों में फिर आपको वो दे दूंगा। नहीं तो बॉयल स्टेट सफिशिएंट है एज अ टेक्स्ट बुक। रेफरेंस के लिए कोई 1-2 बुक और कर लोगे तो नो प्रॉब्लम, लेकिन टेक्स्ट बुक तो यही है बॉयल स्टेट। ओके हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।